Hello students, once again I Pramod sir welcome you all in 7th standard math period. So students, we are going to see the 4th lesson rational numbers next topic now. So students, today we are going to take some examples related to addition and subtraction of rational numbers. So students, in the addition of rational numbers, what will we see? We will see the examples when the denominators are equal. You can see here 20. When the denominators are multiple, when one of the denominator is multiple of the other, you can see here 20 and 5. We know that 5 for the 20. Such examples. And students, we will see some examples when the denominators are not same as well as they are not multiple of one another. Now students, when the denominators are different, in such cases we will find the LCM. We know it up to exercise 4b we have seen that. Now students, in the exercise 4c, let us start with the addition of rational numbers. So students, in the very first question you can see, find the sum of the following. Students, I have written here the question B. You can see students, the denominators are equal. The denominators are equal. So students, it's very easy question. 3 upon 24 plus minus 5 upon 24. As we know that the denominators are set, so 24, so it will be 24 naturally. So 24 by 24 it will be 1, and so we do not need to change the numerators. जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं स्टूडेंट्स, तब उस वक्त हम न्यूमरेटर्स को चेंज नहीं करते. व्हाई? द रीजन बिहाइंड दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 24 अगर हम करेंगे तो 1, और 1 से जिस किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स द न्यूमरेटर वी नीड नॉट चेंज देम. इसलिए जैसा का वैसा लिखा जाता है. एक्चुअली यहाँ पर 3 into 1 होता है और यहाँ पर -5 into 1 होता है. ये बात हमेशा ध्यान में रखना. सो 24 we have written, so 3. Now students, we have to be very careful. Plus -5, तो as it is हमको लिखना पड़ेगा. Now students, 24 as it is, right? And plus into minus. So students, it will be 3 minus 5, right? And students, we know that 3 minus 5 is -2. 3 minus 5 is -2. ये तो अभी आपको आता ही होगा, right? So students, -2 upon 24, दोनों भी अभी ये है हमारे क्या इवन नंबर्स है, so we can simplify that. Therefore, I will write here the question 3 upon 24 plus -5 upon 24 equals to, हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 2 से डिवाइड करो, 2 1 are 2, और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करो तो हमको क्या मिलेगा? 12. यानी ये जो -2 upon 24 है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? इसको भी 2 से डिवाइड किया तो माइनस बनाया, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12. So it is the simplified form. We say it as a standard form as well. Now students, the next one you can see the denominators are 20, so that means these are equal once again. So students, I am going to write the question first. -17 upon 20 plus -3 upon 20. So equals to 20 will be there. -17, ये प्लस और बाद में है -3. सो स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखो आप, यहाँ पर प्लस और ये बाद में माइनस था, तो प्लस इंटू माइनस हमने माइनस किया, 3 - 5 ऐसा लिखा था. और अदरवाइज इस स्टेप की जगह हम ये भी स्टेप
लिख सकते हैं। आई एम गोइंग टू डू हियर आल्सो प्लस इंटू माइनस, मैंने माइनस लिख दिया एंड नाउ 3. सो स्टूडेंट्स माइनस 17 माइनस 3, सो इट विल बी माइनस 20. माइनस 17 माइनस 3 कितना होता है? माइनस 20. सो अपॉन 20 इज देयर and therefore once again we have to write down the question, complete question first. And now students, minus 20 upon 20, so 21 that 20, 21 that 20, minus 1 upon 1 means minus 1 only, right? Next students, f, we will write the question first as usual. 29 upon 30 plus minus 9 upon 30. So the denominators are same, so it will be 30. Now students look here, 29 प्लस इंटू माइनस, ये देखो स्टूडेंट्स, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस 9 प्लस, और ऐसा अगर माइनस है तो प्लस इंटू माइनस क्या आता है? माइनस आता है, हमको पता है. सो 29 माइनस 9, व्हाट विल बी इट? 29 माइनस 9 कितना आएगा स्टूडेंट्स? 20 आएगा. 20 अपॉन 30, और 20 अपॉन 30 को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे स्टूडेंट्स, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 अपॉन 3. 2 upon 3 will be the final answer. So students, what will we do? We will write the question complete first, and later on students we will write the answer. Equals to कितना आएगा? 10 2 the 20, 10 3 the 30. So 2 upon 3 will be the final answer. So students, we have seen when the denominators are same. Now students, we will see the second category question of addition. So let us see. The second question you can see students here. Add the following. Add the following. यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर्स पहले ऑब्जर्व करना है. डिनोमिनेटर्स ऑब्जर्व करने के बाद में यू विल कम टू नो दैट द डिनोमिनेटर्स आर means one denominator is the multiple of other. यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है. So students, in this case what will we do? Let us see. In answer I will write the question first. और सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट्स कि जिसको हमको चेंज नहीं करना, ये देखो 9 को चेंज करने की जरूरत नहीं है. The denominator 9 need not to change, right? मगर ये जो 3 है, 3 के मल्टीपल में 9 आता है, तो 9 को हमने जैसा का वैसा लिख दिया. देखो 1 अपॉन 9. यहाँ पर 2 अपॉन 3 है, तो 9 करने के लिए, डिनोमिनेटर को 9 करने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से. तो ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के, इसमें 2 3 are 6 और 3 3 are 9 प्लस 1/9. यानी स्टूडेंट्स हमने क्या किया? 2/3 को, ये दूसरा जो डिनोमिनेटर है 9, तो ये हमारा जो 2 अपॉन 3, ये जो हमारा रैशनल नंबर है, उसको हमने 6 अपॉन 9 इस इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिए, राइट? सो व्हाट वी गेट द डिनोमिनेटर्स इक्वल नाउ. द डिनोमिनेटर्स आर 9 and 9. So students, we know it very well. 6 plus 1 ये न्यूमरेटर में हो जाएगा और upon 9 डिनोमिनेटर में हो जाएगा. So students, what will we get? 2 upon 3 plus 1 upon 9 equals to 6 plus 1 7 और 9. इसमें कुछ भी यानी कैंसिल नहीं होने वाला है, क्योंकि these are co-prime numbers, numerator और denominator. So the final answer will be 7 upon 9. In this question also I am going to write the answer directly. क्वेश्चन हमारी पहली स्टेप होती है स्टूडेंट्स हमेशा, ठीक है? यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मगर आपको इसी हिसाब से लिखना है सभी. ओके,
You can see students here, I am going to write directly equals to, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 5 है, तो 20 को चेंज करने की जरूरत नहीं है. We can convert 5 into 20. कैसा कर सकते हैं? 5 for the 20. तो -6/20 को हम एज इट इज लिखेंगे स्टूडेंट्स, राइट. प्लस अभी ये जो हमारा -4/5 है, -4/5, इसको हमको कन्वर्ट करना है. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि कुछ बातें अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमको डायरेक्टली लिखनी चाहिए यहाँ पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. द डिनोमिनेटर वी नीड 20. हमको डिनोमिनेटर कितना चाहिए? 20, जो कि 5 के मल्टीपल में आता है. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 से, ऑफ कोर्स, टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट. वी हैव सीन द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स टॉपिक, सो यू नो इट. सो स्टूडेंट्स, 5 4 are 20 और -4 into 4 -16. तो इसका जो इक्विवेलेंट ये है रैशनल नंबर, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 5 4 are 20. यू कैन सी 5 4 are 20. तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को, तो -4 into 4 -16. सो स्टूडेंट्स, यू कैन राइट इन दिस वे आल्सो. यहाँ पर मैंने वो करके दिखाया. अगर आप डायरेक्टली लिखते हो, स्टिल इट इज सफिशिएंट. ओके, तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो. सो इक्वल्स टू, यू कैन सी स्टूडेंट्स, 20 20, ऑफ कोर्स इट विल बी 20. नाउ स्टूडेंट्स, -6, और ये तो मैंने बता दिया आपको, प्लस इंटू माइनस. प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? अगर हम ऐसा भी लिखते हैं प्लस -16, तो भी प्लस इंटू माइनस क्या लिखते हैं हम लोग? माइनस. तो डायरेक्टली माइनस लिख सकते हैं हम. वी हैव टू राइट इट डायरेक्टली. ओके, सो प्लस इंटू माइनस -16. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट विल वी गेट? -6 -16, तो कितना आएगा? -22. कितना आएगा? -22/20, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको फाइनल आंसर क्या मिलेगा? -11/10. 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो -22 क्या बन जाएगा? -11, और 20 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 10. सो इट विल बी आवर फाइनल आंसर, -11/10. नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन, आई एम गोइंग टू राइट द आंसर डायरेक्टली हियर आल्सो. सो यहाँ पर स्टूडेंट द डिनोमिनेटर्स आर 4 and 20. ये जो f है, इसमें डिनोमिनेटर्स है 4 and 20. 4 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 20 मिल जाएगा. तो चलो स्टूडेंट, 4 5 are 20. 5 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करो. -3 into 5 -15. क्या मिल जाएगा हमको? -15. तो -15/20 हो गए. प्लस इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी 20, राइट. सो स्टूडेंट्स, नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, so we can convert this solve this very easily. 20 20 20 -15. यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस ही आएगा, +18. सो स्टूडेंट्स, द फाइनल स्टेप हमको ये हमेशा लिखनी है. हियर आल्सो यू हैव टू राइट डाउन. सो +18/20 इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा हमारा अभी यहाँ पर? लुक स्टूडेंट्स, -15 + 18 यानी 3 आएगा, +3/20. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन जो हमने पहले लेसन में पढ़े थे उसको बराबर अप्लाई करो स्टूडेंट्स. -15 + 18 मीन्स +3/20. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन इन एडिशन. दैट इज, यू कैन सी द क्वेश्चन इज सेम. Find the sum of the following. The question is same.
But students, I told you that the denominators are different. वो equal भी नहीं है और one in denominator is not the multiple of the other. These two are different. So students, in such case, the first step will be हमको LCM निकालना पड़ेगा. 7 और 3 का LCM कितना आएगा? वेरी वेरी इजी. 7 और 3 का अगर हमको LCM निकालना है तो इट्स वेरी वेरी इजी, क्योंकि कॉमन है ही नहीं. 3 and 7 are co-prime numbers, so their product will be the LCM. That is 3 7s are 21. So the first step will be the LCM of the denominators is 21. LCM कितना आएगा? 21. So let us start friends. ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. -3/7 प्लस -2/3. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको कन्वर्ट करेंगे. डिनोमिनेटर को कितना बनाना पड़ेगा? अभी 21. तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको? 3 से, राइट? So directly I am going to write like here 4 5s are 20, so -3 into 5 -15. In this way we will write here also. So students, 7 3s are 21. 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पर हमको. 7 3s are 21, तो -3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो. 3 3s are 9, so -9 आ जाएगा, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, प्लस ये जो माइनस है वो तो माइनस ही रहेगा. अब डिनोमिनेटर में है 3 और उसको हमको कितना बनाना है? 21. तो 3 7s are 21, तो 7 से मल्टीप्लाई करो. 2 7s are 14. Of course -14 आएगा, -2 है तो ओके. नाउ स्टूडेंट्स, like the first question, इस एक्सरसाइज का जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है वैसा अभी हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया है. when the denominators are same, and students, you know how to solve such questions. So students, it will be of course -14/21 equals to, आपको एक के नीचे एक लिखना है, इक्वल टू में ऐसा लिखना है आपको, ठीक है? So 21 21 21 will be there. -9 प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा. 14 as it is, and therefore -3/7 प्लस -2/3 is equal to, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? -4 - 14 कितना आएगा? -23. -23/21. सो स्टूडेंट्स, ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, कॉमन तो है नहीं, वन को छोड़ के, तो एज इट इज वी हैव टू राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 6/11 प्लस -3/4, दैट इज f. तो 11 और 4, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द LCM, एंड द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स इज, the LCM of the denominators is 44. ठीक है स्टूडेंट्स, 11 और 4 में कोई भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स LCM तो 44 आएगा. Therefore, students, I am going to write the question now. ये हो गया हमारा क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स, डायरेक्टली लिखने की आदत डालते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किया, क्योंकि यहाँ पर हमको व्हाट इज अवर मोटो? द मोटो इज टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल, राइट? सो 11 को हमको कितना करना है? 44 करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो लेट अस मल्टीप्लाई 11 with 4, so we will get 44, राइट? 11 4 दा 44, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो. 6 4 दा 24 प्लस 4 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 44 आएगा.
ये जैसा -3/4 है स्टूडेंट्स, अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर कितना मिलेगा 44, और यहाँ पर स्टूडेंट्स -3 इंटू 11 कितना आएगा -33। ये स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो 4 इंटू 11 करेंगे तो 44 मिलेगा, तो 11 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 3 are 33, तो -33 we have to write down. Now students, the denominators are equal 44, 44. So students, we have to write down 44 here, and now 24 as it is, plus into minus, minus 33. So students, here also we will get the answer very easily by using the properties of addition. Therefore, 6/11 plus -3/4 is equal to 24 minus 33 minus 9 आएगा अपॉन 44 एज इट इज। तो इसको हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि these are co-prime numbers. So students, in this way we get the answer. And now students, G, question G. Here students, the denominators are 6 and 5. Of course, once we have to write down the LCM of the denominators. 30 आएगा, the LCM of the denominators is 30. So students, -1/6 है, plus 1/5, so it will be equals to, let us convert this, 6 5 are 30 आएगा, 6 5 are 30, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करो, -1 into 5 -5 प्लस 5 से हमको 30 बनाना है डिनोमिनेटर, तो 5 6 are 30, 6 से मल्टीप्लाई करो, 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 1 6 are 6. Now the denominators are same, 30 30 30, so -5 in the numerator, -5 plus 6. So students, I am going to write down the final step, the first question. Now -5 plus 6 means 1/30. So students, you can see we get the final answer. तो एक बात ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने स्पेस को बचाने के लिए इक्वल टू ये लिखा और बाद में और इक्वल टू लिखा। आपको एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए, इस स्टेप के बाद नीचे और नीचे, लाइक दिस. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द solutions regarding addition of the rational numbers. Here I have taken the selected questions and the remaining are homework for you. So students, I hope you will solve them very very easily. Just study it properly and you will find that these questions are very very simple and easier. So students, see you in next period with subtraction. In the same exercise we will see the next questions which deals with the subtraction of the rational numbers. Okay students, take care, see you in next class, bye bye.